Hello friends, let us continue our world history sessions for history optional और चैप्टर हमारा चल रहा है colonialism and imperialism. So the first part of the chapter, that is colonialism, today we need to cover this. And आज का सेशन छोटा सा ही है क्योंकि colonialism पहले पोर्शन को हमें कवर करना है, then in the next session we'll enter into imperialism. सो आई होप इन द प्रीवियस सेशन हमने कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बीच में डिफरेंस जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था, दैट द कलोनियलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड इंपीरियलिज्म वाज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इस मोड तक हम कैसे पहुंचे, वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल्स इन द प्रीवियस सेशंस, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस. ऑलराइट, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉच दी सेशंस इन कंटिन्यूटी सो दैट आप कहानी के साथ जो है वो अच्छे रोबस्ट तरीके से जुड़े रहें, राइट? बिकॉज जो पूरा टाइमलाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी टू द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, देन टू द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, राइट, टू द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. ड्यूरिंग दिस पीरियड this is the first phase of the industrial revolution. Here we have the second phase of the industrial revolution. So during the second phase of industrial revolution, or rather the result of the combined result of first and the second phase of industrial revolution, क्या देखने को मिलता है हमें इसके रिजल्ट में? imperialism. So in the next session we'll discuss neo-colonialism or imperialism. And before this, before the mid of the 18th century, or rather हम कहें कि 15th 16th century से 18th century तक हमें क्या देखने को मिलता है? colonialism, right? The rise of mercantile revolution और commercial revolution, और इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है colonialism. So I hope previous session अगर आपने देखा होगा तो अच्छी तरह आप समझते होंगे, right, the reasons behind the rise of colonialism. So the decline of Constantinople, the rise of mercantilism, the rise of consumer class, the spirit of Renaissance Reformation, and the technological upgradations. Right? Then हमने establish किया different, इस पूरे में आपको हमने समझने की कोशिश करी. Spain and Portugal, and then Britain and France and Dutch. After that, Germany and Italy, they entered into the competition of colonization in the form of imperialism. Right? So colonization of different parts of the world, it started with Portugal and Spain, then British, French and Dutch joined during the phase of colonialism. During the phase of imperialism, Britain, France, Germany, Italy and Dutch also were there as a player, right, in the period of imperialism. We started our story with Columbus discovering Americas, right? Although Americas जो है वो पहले से ही डिस्कवर कर लिए गए थे, कुछ और नेवल एक्सपीडिशंस जो हुए, स्पेशली फॉर, अगर हम देखें, कोलंबस ने लास्ट ऑफ द 15th सेंचुरी में जो डिस्कवरीज करी, उससे पहले वाइकिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए थे, कनाडा, न्यू फाउंडलैंड वाले रीजन तक पहुंच गए थे वाइकिंग्स, दिस रीजन, राइट. कोलंबस जो है वो स्पेन से निकलते हैं और कहीं कैरिबियन आइलैंड में, हाइटी एक्चुअली वो लैंड करते हैं. सो वहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू होता है. देन कॉर्टेज एंड जो अदर पार्टीज आती हैं, they in fact they massacred the Aztecs, they massacred the Mayans, and then the Incans and so on. So we discussed all of this in the previous session. ये हमने पहले previous session में cover कर लिया है, right? So the colonization of South America, then the colonization of North America, the colonization of Africa, right, the colonization of South Africa. In today's session we will discuss the colonization of Asia, right? Although the colonization of Asia में साउथ एशिया के colonization को हम डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि इंडिया के colonization को हम डिटेल में पढ़ते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, राइट, मॉडर्न के अंदर. बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट. आज के सेशन का जो हाईलाइट है वो ये नहीं है, right, the colonization of Asia, because that we need to discuss under modern Indian history in details. I'll just give you few brief points. Details में हम modern के अंदर पढ़ेंगे. The highlight is of today's session
that is what was the policy of European companies towards Asia and how and why that policy was different, right? European companies followed different policies for different colonies. एशिया में इंडिया और लेट्स से चाइना के प्रति यूरोपियंस की पॉलिसीज अलग क्यों थी एज कंपेयर टू देयर पॉलिसीज फॉर अमेरिका एंड अफ्रीका? यार समझ रहे हैं आप? सो अमेरिका और अफ्रीका से अगर हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन कॉलोनीज, यूरोपियन कंपनीज की पॉलिसीज को, तो वो अलग हमें देखने को मिलती हैं. ऐसा क्यों है? कारण क्या है इसके पीछे? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. But first of all, let us go through these brief points. The process of colonization of Asia started with the discovery of Indian sea route by Vasco da Gama of Portugal. So we know this fact very much. Vasco da Gama, with the help of some other sailor, आप मुझे नाम बताएंगे उस सेलर का नाम क्या? although मॉडर्न में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे उन्हें. राइट, फ्रॉम केप ऑफ गुड होप टिल कैलिकट तक जो है वो उनको लेकर गए. Now Portugal controlled this sea route along with the strategic port of Hormuz in Persian Gulf. So if I show you this in map, so this is the Hormuz region and this was that strategic whole route. So Portuguese controlled or kept control over this sea route for a long time. काफी लंबे समय तक इस रूट पर जो है वो पोर्चुगीज ने कंट्रोल रखा. राइट, एंड नॉट जस्ट दिस, टू दी साउथ ईस्ट एशिया भी. ठीक है, इनफैक्ट अप टिल जापान, इस पूरे रीजन पर, एंड हियर इन दी ब्राजीलियन रीजन एंड ऑल्सो इन दी कैरिबियन. एटलीस्ट इतने रीजन में जो है वो पोर्चुगीज ने काफी लंबे समय तक अपना दबदबा बनाकर रखा. राइट, इनफैक्ट पोर्चुगीज नॉट जस्ट नेवल शिप्स बट पायरेट शिप्स ने भी बहुत दबदबा बनाकर रखा है इतने रीजन पर. राइट, दे डेवलप्ड फैक्ट्रीज इन इंडिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया. They were mainly interested in spice trade. They developed big oceanic empire in Asia which was known as Estado da India. So Estado da India नाम का एक big oceanic empire बनाया. They were ruling, right, for a long time. It was Portuguese who were ruling Atlantic and Indian Ocean and part of South China Sea. They were ruling these regions. They had factories, or एटलीस्ट फॉर रूल किस पर कर रहे थे वो? अदर यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो आगे नहीं आने दे रहे थे वो. राइट, ये तो बहुत बाद में जाकर अराउंड 1600 में जाकर जो डच वेसल्स हैं, डिफरेंट डच वेसल्स हैं, ब्रिटिश पायलट्स हैं, राइट, दे गॉट, मतलब उनको जो है वो मैजेलन पास वाला रीजन पता चला एंड देन दे रीच टू द ईस्टर्न साइड. राइट, दे न्यू दिस, इस रास्ते के बारे में वो जानते थे, लेकिन यहां से क्रॉस करना जो है बहुत मुश्किल था बिकॉज पोर्चुगीज की पकड़ बहुत मजबूत थी यहां पर. सो मैजेलन पास को पार करके वो पैसिफिक को क्रॉस करके पहुंचते हैं एशिया. राइट, फिर वो धीरे धीरे पोर्चुगीज पावर को कमजोर करना शुरू करते हैं एंड देन इवेंचुअली ब्रिटिश और पोर्चुगीज जो है वो आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते हैं और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता काफी हद तक खुल जाता है एंड इवेंचुअली ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते हैं फिर इस ट्रेड को. सो नेक्स्ट मिस्ट्रेस ऑफ सी बनते हैं ब्रिटिशर्स. उसके बाद अगले गैंगस्टर हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिट्स. गैंगस्टर्स क्यों कह रहा हूं मैं? एक्चुअली दे वर गैंगस्टर्स. दे यूज बहुत ब्रूटल पॉलिसीज अपनाते थे ये हाई सीज में बहुत ज्यादा, नॉट जस्ट ऑन हाई सीज बट ऑन लैंड टू. वही हमें समझना है कि अमेरिकन और अफ्रीकन कॉलोनीज के अगेंस्ट यूरोपियंस ने बहुत ब्रूटल पॉलिसीज अपनाई इनिशियली. राइट, लेकिन साउथ एशियन और ईस्ट एशियन यानी चाइना और इंडिया के लिए इतनी ब्रूटल पॉलिसीज उन्होंने क्यों नहीं अपनाई इनिशियली क्यों वो सलाम ठोकते गए इंडियन और चाइनीज रूलर्स को? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, वन बेसिक रीजन तो यही है कि भैया इंडियन और चाइनीज जो रूलर्स हैं दे वर वेल टू डू. जैसे मैंने आपको टाइम एंड अगेन कहा है कि हमें यूरोपियन से कुछ नहीं चाहिए था, तो यूरोपियंस को जो गोल्ड और सिल्वर अमेरिका से मिल रहा था उसका ड्रेन हो रहा था इंडिया की तरफ.
क्यों? क्योंकि हम उनको बेच रहे थे, या नॉट जस्ट इन इंडिया बट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, यहां पर उन बुलियंस का ड्रेन चल रहा था और ये यूरोपियंस झेल नहीं पा रहे थे, राइट? सो दे स्टार्टेड कॉन्करिंग पॉलिटिकली, बट दे वेटेड फॉर एन अपॉर्चुन मोमेंट कि जब जो लोकल रूलर्स हैं, जो नेटिव रूलर्स हैं, वो कमजोर हो जाएंगे, राइट? या धीरे धीरे उनको कमजोर किया उन्होंने, देन दे स्टार्टेड एक्वायरिंग पॉलिटिकल टेरिटरीज, या पॉलिटिकली जो है वो टेरिटरी को एक्वायर करना उन्होंने शुरू किया, कॉलोनाइजेशन को थोड़ा और एक्सटेंड किया उन्होंने, राइट? सो अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी गो इनटू दिस डिटेल, सो दैट इज अ परफेक्टली फेयर आंसर, ठीक है? बिल्कुल, मैंने ये सवाल जो है वो ग्रुप पर भी पूछा था स्टूडेंट से, और जो आपने जवाब दिया था दैट इज परफेक्टली एडिक्वेट, बट व्हाई, ऐसा क्यों है, बैकग्राउंड क्या है इसका? थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आपको समझ आता है, then you will be able to understand this whole concept completely. So Portuguese established their monopoly over the seas, but their monopoly ended down with the arrival of Dutch and the Britishers. So Portuguese and Spaniards, they were Catholics, right? And Catholics के against जो है वो Dutch and Britishers आकर खड़े होते हैं, they were Protestants. So it was again, in this term you can also understand this, the control over the seas or the control over the colonies was again a conflict between Catholics and Protestants, right? Because the slogan was gold, glory and gold, God. But whose God? Catholic God or Protestant God, right? So the British defeated Portuguese power at sea and captured Ormuz, and later they captured Portuguese regions in India, Sri Lanka, etc. Portuguese got confined to the regions of Goa, Daman, Diu and India. Then a contest started between British and Dutch. So Portuguese को हराया, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया और उनको साइड कर दिया. मॉडर्न में इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे. फिर डचेस की तरफ घूमे, वो डचेस को हराया और डचेस को भी इंडिया से साइड कर दिया ब्रिटिशर्स ने. पोर्चुगीज को हराया, पोर्चुगीज को इंडिया से साइड कर दिया. डचेस को हराया, डचेस को इंडिया से साइड कर दिया. फिर पैरेलल में ही फ्रेंच को हराया और फ्रेंच को भी इंडिया से साइड कर दिया, और एटलीस्ट साउथ एशिया पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया पूरी तरह एस्टेब्लिश. फिर उसके बाद although we will discuss this in modern Indian history, right? पैरेलल टू दिस वो इंडियन पावर्स को भी कमजोर करते जा रहे थे. अफगान्स के साथ काफी लंबे समय तक उलझे रहे वो. We'll discuss that. Now British overpowered Dutch in India, whereas Dutch held to their control over Southeast Asia. So Dutch East Indies is, it came to be known as Indonesia, right? Now India became the main colony of British, whereas Indonesia became remained to be the base of Dutch. French were latecomers, but French ने कंट्रोल किया इंडो चाइना को, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया. इंडो चाइना was under the control of French, India was under the control of Brits, and Indonesia were under the control of Dutches. Apart from that, here and there few colonies of Portuguese and Spaniards, right, उनके भी छोटी मोटी colonies, island nations जो हैं वो मौजूद थे. Now they too tried to establish their control over the region. They had a long struggle with Britain, but finally they lost in Carnatic Wars. Later France got control over Indochina, वियतनाम पर जो है वो फ्रांस का कंट्रोल आया. Although मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सब पढ़ेंगे ही, दी एडवेंट ऑफ यूरोपियन चैप्टर के अंदर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देयर विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज, राइट? कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करी टेरिटरी, व्हाट पॉलिसीज दे यूज्ड, राइट? वो सारी चीज़ हम समझेंगे. हियर इट इज जस्ट आई एम गिविंग यू अ पासिंग रेफरेंस, बिकॉज द मेन पोर्शन, मेन पार्ट ऑफ द टुडे सेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, the policy of European companies towards Asia. This is the most interesting one. A very interesting concept मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ. Make sure कि आप पिछले सेशंस को जरूर रिवाइज करें और करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? Now, European companies followed different policies for different colonies.
Thus their policy for India and China were different from those of Africa and Latin America. Now with the help of these statements, I'm going to give you a very standard answer to this question, that why the policies of European companies differed for differing regions, right, for different regions. Now, but as far as India and China were concerned, they came as petitioners requesting permission to trade. Like Cortes wreaked havoc on the Native American colonies. Before him, Columbus wreaked such havoc, and Cortes के बाद उसके followers. All of these Spaniards and Portuguese, and then उसके बाद Britishers and French in the American colonies, they wreaked havoc, they killed, they fought, right? They destroyed the Native American agriculture, economy, population, their society, their culture. They destroyed all that, right, from the very start. Similar things were done by Britishers in India too, but in the later part. Initially Britishers, they came as petitioners. When I'll जब मुगल्स पढ़ेंगे, I'll explain you the Portuguese जब आए, then Britishers जब आए, तो कैसे सलामियाँ ठोकते हुए आए वो मुगल्स को. ऐसा क्यों है? देखिए, जो very basic answer is this, that this was because during the time there were established powers like Mughals in India and Macau in China. So powerful जो है वो leaders मौजूद थे, right? This is the fact. But इसके पीछे का concept क्या है? क्यों है पावरफुल, यहाँ पर पावरफुल नेता क्यों मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो अमेरिकाज में पावरफुल लीडर्स मौजूद क्यों नहीं थे? इस तरह की पावरफुल सिविलाइजेशंस मौजूद क्यों नहीं थी? क्या ये लोग पीछे थे हमसे? जैसे यूरोपियंस ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया? यूरोपियंस वर फाइनली एबल टू सब्जुगेट ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड दैट दे नो ऑफ, राइट? और फिर उन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि भैया हम कंट्रोल कर सके हैं. क्यों? क्योंकि ये वेस्ट एशियंस, ये साउथ एशियंस, ये ईस्ट एशियंस, ये साउथ ईस्ट एशियंस, ये ऑस्ट्रेलियंस, अबॉरिजिनल्स, these Africans, these North Americans or South Americans, whole of the world, they all are primitive people, they are barbaric, some of them are even subhuman, right? But is that the case? क्योंकि इंडिया और चाइना के केस में तो ऐसा नहीं हुआ, साउथ ईस्ट एशिया के केस में ऐसा नहीं हुआ. इनिशियली उनको सलामी ठोकते हुए आना पड़ा, राइट? क्योंकि पावरफुल स्टेट्स मौजूद थी. इन दिस होल रीजन, ऑलमोस्ट इन द होल रीजन, मुस्लिम पावर्स वर स्ट्रॉन्ग. सो मुस्लिम पावर्स के साथ तो स्ट्रगल यूरोपियंस कर ही रहे थे काफी लंबे टाइम से, क्रूसेड्स के टाइम से ही. इनफैक्ट क्रूसेड से पहले से ही जो अरेबियन कॉन्क्वेस्ट हुआ, राइट, यूरोपियन रीजन का, तब से ही मुस्लिम पावर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, या क्रिश्चियन स्ट्रगल कर रहे थे मुस्लिम पावर्स के साथ. सो अब अचानक ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों, राइट? इसके पीछे भी एक कारण है, ठीक है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आप ये समझ सकते हैं कि एक ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस ने बहुत सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई, राइट? दे chose to मतलब be a petitioner in the case of China, in the case of Southeast Asia, in the case of India, but not in the case of Africa or the Americas or the Australia. Why is that? और इस तरह पुट करूं मैं कि यहाँ पर इन देशों में जो है वो बड़े एम्पायर्स क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुए? इन लोगों ने जो है वो बड़े राज्य, पावरफुल राज्य क्यों नहीं एस्टेब्लिश किए? ऑल्दो अफ्रीका में नॉर्दर्न साइड पावरफुल राज्य जो है वो मौजूद थे, but in the western side of Africa, why there were no powerful states as powerful as the, let's say, Mamluks or the Mughals or the Macaus, right? ये कारण क्या है इसके पीछे का, ये समझना जरूरी है. although ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने आंसर में भेजी ही मुझे, right? Now for example, William Hawkins arrived in Jahangir's court and Macartney in Chinese court with gifts, but imbalance in trade was making it difficult for European countries to sustain the business, because Indians and the Chinese and the Southeast Asians, they had almost no need for what Europeans had to trade. मतलब यूरोपियंस के पास जो ट्रेड करने को था, हमें जरूरत नहीं थी उसके, हमारे पास बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे. सो हम उन्हें बेच रहे थे अपना सामान, हमारे पास जो उन्हें चाहिए था स्पाइसेस, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पाइसेस है, उसके अलावा सिल्क, राइट, बेटर क्वालिटी कॉटन लाइक मुसलिन, लाइक लेनिन, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन्स,
a lot of different type of medicines, right? Textile में मतलब not just silk cotton but woolen textile too. Otherwise there was a well established woolen industry in Britain, right? लेकिन हमारे पास और बेटर तरीके की वुलन इंडस्ट्री थी. सो ओवरऑल टेक्सटाइल, ओवरऑल स्पाइसेस, मेडिसिन्स एंड व्हाट एल्स, मेटल. मेटल में भी स्टील, बेटर क्वालिटी का स्टील था हमारे पास, राइट? So huge amount of gold and silver was draining to Asian countries through the Europeans. They were waiting for, अब जो अमेरिका से पैसा कमा रहे थे यूरोपियंस, वो इंडिया में लग जा रहा था उनका बुलियन सारा का सारा. दिस वाज हैपनिंग 16 से 18 सेंचुरी तक, राइट? इनफैक्ट 16 से आप मान लीजिए 16 से 18 सेंचुरी के बीच में ये कहानी चल रही थी. And that was the case for not just for Britishers, Dutches, French, सबके लिए, जैसे जैसे वो आए. एंड वो हरा नहीं पा रहे थे, हमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे. थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रीज उनको एस्टेब्लिश करने का मौका दिया जा रहा था, बट नॉट मोर देन दैट, राइट? They were waiting for a right opportunity so that they can use the local resources to buy goods for trade. They got this opportunity after the Battle of Plassey and Buxar in India and after the Opium Wars in China. Both we will discuss under modern Indian history, right? Opium Wars and this Battle of Plassey and Buxar. With the help of these battles, eventually Britishers जो है वो, especially Britishers की अगर हम बात करें तो इंडिया में वो थोड़ा सा chaos क्रिएट करने में कामयाब रहे, एंड इवेंचुअली उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया पूरे इंडिया पर, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर, राइट? इन द फॉलोइंग 1 century. बट व्हाट वाज द रीजन? कारण क्या है? इससे पहले, मतलब पहले जो है वो अमेरिकाज को इतनी आसानी से वो क्यों सब्जुगेट कर पाए, अफ्रीका को इतनी आसानी से क्यों सब्जुगेट कर पाए? ऑल्दो वो काफ़ी लंबे टाइम तक घुस नहीं पा रहे थे अफ्रीकाज के अंदर, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर कर सके तो हाउ एंड वाई दे वर एबल टू कंट्रोल अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया विद सच ईज? कारण क्या है इसके पीछे? चलो मैं अमेरिका का एग्जाम्पल देकर आपको पूरी कहानी समझाता हूँ. So the northern and the southern America, if this is the northern America, this is the southern America, and here we have Russia, right? And between them is the Bering Strait. So it is said that somewhere around right, let's say this is the Northern America and here we have Russia and this is the Bering Strait. So during the period of Younger Dryas, somewhere around 11,600 years, right, to 14,000 or 16,000 years ago, during this period of Younger Dryas, ये रीजन जो है वो जमा हुआ था, राइट? एंड एक ब्रिज जो है वो यहाँ पर क्रिएटेड था बेरिंग सी पर, और उस ब्रिज को क्रॉस करके इस रीजन से, साइबेरियन रीजन से, मंगोल वाले रीजन से लोग माइग्रेट करके नॉर्थ अमेरिका पहुंचे और धीरे धीरे उन्होंने सेटल किया इस पूरे रीजन को, राइट? इट टुक देम थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रीच फ्रॉम अलास्का टू दी सदर्न मोस्ट टिप्स ऑफ चिले और अर्जेंटीना, राइट? इट टुक देम थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट? बिफोर दैट होमोसेपियन की कोई जो है वो खास यहाँ पर ब्रांचेस मौजूद नहीं थी नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका में, ठीक है? दिस हैपेंड समवेयर अराउंड 12,000, अगर मीन हम रख लें तो 12,000 ईयर्स अगो, right? But a new study suggests that this happened, or this migration started even some years before, so it started somewhere around 22,000 years ago, right? Now what were these people doing for their subsistence? These people were hunting and gathering and foraging and scavenging, and after this, or somewhere around 12,000 years ago, in region of Iraq and in regions around this, एग्रीकल्चर जो है वो एस्टेब्लिश शुरू हो जाता है, राइट? और 10,000 ईयर्स अगो तक तो आते आते इंडिया तक भी एग्रीकल्चर जो है वो पहुंच जाएगा. लेकिन अमेरिकाज में एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 9,000 ईयर के आसपास पहुंचेगा, यानी और पीछे. सो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हो गया
उससे लगभग 3000 साल पीछे जो है वो अमेरिका चल रहा है, राइट। बट दिस शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, बहुत ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, दिस एक्सप्लेन्स, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। व्हाई वी डू थिंग्स, व्हाई इन हिस्ट्री वी हैव फॉट और वेज्ड अ लॉट ऑफ वॉर्स, क्यों लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह गए, क्यों यूरोपियंस जो हैं वो डायरेक्ट रूट ढूंढ रहे थे, राइट। वी स्विच फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर नॉट बिकॉज एग्रीकल्चर, अच्छा इफ आई आस्क यू, राइट, ऑनेस्टली आप क्या सोचते हैं, हंटिंग और गैदरिंग से एग्रीकल्चर में हमने स्विच क्यों किया, राइट। क्या एग्रीकल्चर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था हंटिंग और गैदरिंग से, राइट। क्या लगता है आपको? हमारी स्पीशीज अराउंड 400,000 ईयर्स, आप मान सकते हैं, देर आर मेनी डिफरेंट सोर्सेज दैट कोट कि 150,000 ईयर्स से जो है हमारी स्पीशीज है, बट ऑलमोस्ट 450,000 ईयर्स से जो है वो होमो सेपियंस मौजूद है। तो 4 लाख साल से 12 लाख साल तक आते आते क्या हम ऑलमोस्ट इस 4 लाख साल में एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाए? क्या हमारी बुद्धि इतनी डेवलप ही नहीं हुई थी कि 4 लाख सालों तक हमें एग्रीकल्चर समझ नहीं आया? क्या हमें इतना पता ही नहीं चला कि एक बीज अगर हमने कहीं फेंक दिया गलती से और कुछ दिनों बाद वो उग आया और हमने उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि यार ये तो मेरा फेवरेट जो है वो प्लांट उग गया यहाँ पर, राइट। तो क्या 4 लाख सालों से हमें ये समझ ही नहीं आ रहा होगा? ऐसा नहीं है कि इंसान बेवकूफ था। द रीजन बिहाइंड द राइज और द स्विच फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर is the gradual and constant increase in population. The land was simply not able to sustain hunting and gathering. Hunting और gathering जो है वो land sustain ही नहीं कर पा रहा था। जब resources कम हो जाएंगे तो क्या चारा बचेगा? या तो अपने लोगों को मार दो, कम कर दो, या तो कुछ ऐसा करो और मेहनत करो प्रोडक्शन के लिए। तो वो जो और मेहनत है वो उसका नतीजा एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर करके खुश नहीं थे और आज भी हम एग्रीकल्चर करके कुछ खास खुश नहीं है। लेट मी explain it in this term. For every calorie we put in hunting and gathering we get 10 calories back, and मतलब एनर्जी वाइज अगर आप देखें, and for every calorie we put in agriculture we get only 4 calories back. तो इतना जो है वो डिफरेंस है हंटिंग और गैदरिंग और एग्रीकल्चर में। Sorry. So we shifted towards agriculture, kicking and screaming. We didn't want to do it. Nevertheless, we had to do it for survival. And जैसे जैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फिर उसके बाद की कहानी तो मैंने आपको बताई है कि कैसे कैसे फिर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई। And that happened in this region, right? यानी कि किस रीजन में हुआ ये? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया से नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया से साथ पैरेलली जो है वो ऑलमोस्ट 2000 साल बाद इंडिया वाले रीजन में भी, राइट। इंडिया के पैरेलल जो है वो चाइना वाले रीजन में भी, साउथ ईस्ट एशिया भी। तो ये क्यों धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे स्विच करते जा रहे थे हंटर गैदरर्स? क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो अब पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, यानी कि हंटिंग और गैदरिंग के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे थे, तो एग्रीकल्चर पर स्विच करना पड़ रहा था जबरदस्ती, राइट। तो जो सिविलाइजेशंस, सॉरी नॉट सिविलाइजेशंस, जिन रीजन्स में लोग जल्दी एग्रीकल्चर पर शिफ्ट कर गए, प्रोवाइडेड वहां पर रिसोर्सेज भी जब ज्यादा थे, लाइक इन केस ऑफ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर जल्दी चीफडम्स, देन किंगडम्स, देन एम्पायर्स जो है वो डेवलप हो गए और कॉम्प्लेक्स जो है वो सोशल स्ट्रक्चर्स वगैरह सब डेवलप हुए एंड इवेंचुअली दे डेवलप्ड पावरफुल, एंड सिंस इट इज अ ल्यूक्रेटिव रीजन तो इवेंचुअली पावरफुल स्टेट्स वहां पर डेवलप होते गए। बट दैट वाज नॉट द केस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, राइट। इट वाज अ ह्यूज ट्रैक ऑफ लैंड. It took them thousand of years to first of all fill the whole land and then bring that land to the threshold where now people have to start agriculture, right? So for North and Southern America it happened 3000 years late, 3000 साल ऑलमोस्ट बाद में हुआ ये। फॉर अफ्रीका ऑल्सो, क्योंकि अफ्रीका से मेजोरिटी लोग तो माइग्रेट कर गए थे बाहर, ये तो रहने लायक है नहीं, जंगल भी रहने लायक है नहीं, राइट।
देर आर ओनली बीच बीच में कुछ ट्रैक्स हैं लैंड के जो रहने लायक हैं, और वहां पर जो है वो ट्राइब्स आपस में एग्रीकल्चर तो कर रही है, लेकिन ट्राइब्स आपस में स्ट्रगल भी कर रही हैं। प्लस ऊपर यहां पर जो है वो क्या मौजूद है, मोर पावरफुल स्टेट्स हैं, राइट। सो दीज अफ्रीकन, इनको मूव करने की भी कहीं जगह नहीं है। सो ये एक ये भी कारण है कि ये अपने आप को बड़े लेवल पर बड़ी स्टेट्स डेवलप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक तो पहले इनके पास कम है लैंड, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, राइट। अब बट ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बाहर माइग्रेट भी कर गए, तो अकॉर्डिंग इन दैट मैनर, इन दैट रिगार्ड जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी भी कम हो गई, राइट। सो कंपटीशन कम हो जाने से हंटिंग गैदरिंग जो है वो काफी लंबे समय तक यहाँ कंटिन्यूड रहा, और इनफैक्ट आज भी चल रहा है, ठीक है। बट दैट वाज नॉट द केस फॉर वेस्ट एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर पर शिफ्ट करना ही पड़ा, which resulted into eventual establishment of chiefdoms and then kingdoms and then empires, right. Similar चीज नॉर्थ अमेरिका, सदर्न अमेरिका में नहीं हो सकी। That is why they were technologically behind, क्योंकि जरूरत नहीं थी उन्हें, अभी लैंड बहुत था उनके पास। धीरे धीरे जब वो सेचुरेट हो गया, देन दे स्विच्ड ओवर टू एग्रीकल्चर। सो जब यूरोपियंस पहुंचते हैं अफ्रीका में, तो यस आंसर वही है सेम, कि दे वर लेस डेवलप्ड, राइट, दे वर टेक्नोलॉजिकली लैकिंग। यूरोपियंस अपने साथ घोड़े लेकर आए, यूरोपियन अपने साथ जो है वो गन्स लेकर आए, यूरोपियन अपने साथ कैनन्स लेकर आए, यूरोपियन अपने साथ ट्राइड एंड टेस्टेड बैटल टेक्निक्स लेकर आए, इन सभी इक्विपमेंट्स को यूज करने की। यूरोपियन अपने साथ बेटर सीज वेपन्स लेकर आए, यूरोपियन अपने साथ प्रॉपर फ्लीट्स लेकर आए, राइट। नॉर्थ अमेरिकन एंड सदर्न अमेरिकन यूरोपियन अपने साथ बीमारियां लेकर आए, they were not ready for this. Same goes for Africa. Now African people, they knew about Europeans, they have traded with European for thousands of years, trade तो चल ही रहा था, right. But Africans, they were in constant struggle with each other, and Europeans took benefit of that struggle, right. Similar benefit of the struggle Europeans took in the case of India also, but India में थोड़ा टाइम लगा उसको, थोड़ा टाइम लगा ब्रिटिशर्स को इंटरनल ट्राइफल्स का बेनिफिट उठाने में। क्यों? क्योंकि पहले एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर मौजूद थी। अफ्रीका के केस में ऐसा नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर मौजूद नहीं थी। सेम गोज फॉर नॉर्थ अमेरिकन, सदर्न अमेरिका, वहां पर भी बेनिफिट उठाया यूरोपियंस ने इंटरनल डिसेंशंस का, ठीक है। विल डिस्कस दैट, बट आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट, दैट वी स्विच्ड, व्हाई वी स्विच्ड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। वी एज अ स्पीशीज, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। अगर आप देखें तो कोई खेती करके खुश नहीं है, राइट। बहुत सारी चीजें हमने खो दी टू स्विच ओवर टू एग्रीकल्चर। एक तो हमने कैलोरी इनपुट जो है वो, यानी कि यहाँ क्या था, 1 पे 10 का रिटर्न था, यहाँ पर 1 पर 4 का है। उसके अलावा यहाँ पर वैरायटी थी फ्रूट की, क्योंकि हम वैरायटी थी डाइट में, राइट, डिफरेंट चीजें खाते थे, क्योंकि अलग अलग मौसम पर अलग अलग चीजें जो है वो पकती थी, और हमें घूम घूम कर उन्हें खाना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। नाउ वी वर टाइड टू लैंड, क्योंकि अगर आज आप उगाएंगे कोई चीज, क्योंकि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी, तो अगर इस लैंड पर आपने उगाया है कुछ, तो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज साइड वाली जो ट्राइब है या जो बैंड है वो आकर आपकी हार्वेस्ट, मतलब आपकी फसल को हार्वेस्ट करके ले जाएगी। तो वी डेवलप दिस वेरी वियर्ड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। सो एग्रीकल्चर से हम धीरे धीरे जो है वो हमने सेटल्ड लाइफ शुरू करी, एंड जैसे ही हमने सेटल्ड लाइफ शुरू करी, सो अब सेटल्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए, राइट। ऐसा नहीं है कि हंटिंग गैदरिंग टाइम पर बैंड सोसाइटीज लड़ नहीं रही थी आपस में, लेकिन अब जो है वो सेटल्ड ट्रैक्ट ऑफ लैंड के पीछे लड़ा जा रहा है। उसके अलावा और भी बड़े इश्यूज थे, राइट। जंगल को साफ करना एक बहुत बड़ा इशू था खेती लायक भूमि बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो एक ही चीज बार बार उगाएंगे, तो आज अगर 100 यूनिट प्रोडक्शन निकल रही है, तो अगले साल जो है वो इसका 10% कम निकलेगा, यानी 90। अगले साल इसका 10% कम निकलेगा, यानी 81। अगले साल इसका 10% कम निकलेगा, अराउंड 73। सो बाय द टाइम 81 73, यानी चौथे साल तक आते आते ये भूमि अब उगाने लायक बचेगी ही नहीं, एंड इट विल टेक इस भूमि को वापस 100 पर आने के लिए ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का टाइम लगेगा।
समझ रहे हैं? अगर 10% प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है तो 10% प्रोडक्टिविटी वापस बढ़ाने के लिए 10 साल का टाइम लगेगा नेचुरली, बिकॉज वी हैड हमें इरिगेशन और अगेन अनदर थिंग, फॉर इरिगेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन. सो रेन गॉड्स धीरे धीरे हमने डेवलप करे. सो ऑलमोस्ट सभी कल्चर में रेन गॉड्स आपको देखने को मिलेंगे. वी वर डिपेंडेंट ऑन गॉड्स और वी वर डिपेंडेंट ऑन रेन, राइट? सो एक बहुत वियर्ड रिलेशनशिप लैंड के साथ बन गया हमारा कि एक लैंड है अगर आपके पास कोई, तो भैया उस लैंड के 11 हिस्से करो, राइट? और 11 में से एक हिस्से पर खेती करो 1 साल, फिर इसको छोड़ो, फिर अगले हिस्से पर, इसको छोड़ो, फिर अगले हिस्से पर, इसको छोड़ो, फिर अगले हिस्से पर, तभी सस्टेन कर पाओगे. और ये 11 हिस्से को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. और प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही अगर आप इस हिस्से को छोड़ेगा, अगले साल यहाँ पर फिर पेड़ उगाएगा, तो फिर उस पेड़ को हटाने का झंझट. स्टोन टूल से आपको पेड़ हटाने हैं, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है. अगर सूखे एरिया में नहीं रह रहे हैं, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो आप जला भी नहीं पाएंगे. स्टोन टूल से काटना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा पेड़ को, राइट? एट द सेम टाइम आपको इन्वेडर्स का भी ख्याल रखना है. क्यों? क्योंकि पास वाला साइड वाला जो बैंड है या साइड वाली जो धीरे धीरे विलेज बन रहा है, दे आर नॉट सो कीन ऑन वेटिंग ऑन, राइट? वो वेट नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि उन्होंने लेट्स से 3 साल एक ही लैंड पर उगा लिया, अब 73 यूनिट ही निकला, विच इज नॉट, मतलब वो पूरा नहीं पड़ रहा उनकी पूरी फैमिली के लिए, तो दे स्टार्टेड बैंडिट्री नाउ. अब वो दूसरे का छीनने उतर आए, राइट? सो दिस रिजल्टेड इनटू इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ क्लैंस, राइट? क्यों? क्योंकि अब जुड़कर रहना बहुत जरूरी हो गया. एंड इन पार्ट दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनटू डेवलपमेंट ऑफ पेट्रियार्की टू, बिकॉज ये जो लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टेंट वॉरफेयर चल रहा है, इसमें लड़ने के लिए पुरुषों की जरूरत थी, राइट? सो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है वो पेट्रियार्की को भी बॉर्न करता है. अदरवाइज हंटिंग गैदरिंग के टाइम पर ऐसा नहीं था, पेट्रियार्की नहीं थी. हंटिंग गैदरिंग के टाइम पर अल्दो कहा जा सकता है कि हंटिंग जो है वो पुरुष कर रहे थे और गैदरिंग जो है महिलाएं कर रही थी, जनरली स्पीकिंग. अदरवाइज हंटिंग में महिलाएं भी शामिल थी और गैदरिंग में पुरुष भी शामिल थे. इनफैक्ट फॉर मेजॉरिटी टाइम्स गैदरिंग ही चल रही थी, चाहे वो पुरुष कर रहे हो चाहे महिलाएं, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर रोज जो है वो हंटिंग कर पा रहे थे पुरुष. दे वर ट्रैकिंग देयर एनिमल्स, अपने आसपास के एरिया में वो एनिमल्स को ट्रैक कर रहे थे, उनके मूवमेंट को ढूंढ रहे थे. दे वर ट्राइंग टू फाइंड वीक लिंक्स, कि कमजोर कौन हो रहा है, बूढ़ा कौन हो रहा है, उसका पीछा करना है, फिर उसको धीरे धीरे करके थकाना है और मारना है. सो इट वॉज, हंटिंग वॉज रिलेटिवली मतलब कम चल रही थी, गैदरिंग ज़्यादा चल रही थी, और मेल और फीमेल दोनों कर रहे थे गैदरिंग, राइट? सबको करनी ही पड़ रही थी. एंड दीज वर द हैप्पी टाइम्स. जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉर एवरी 1 कैलोरी वी पुट 10 कैलोरीज हमें रिटर्न में मिल रही थी. वी हैड मेडिसिन, राइट? वी हैड डिसेंट, नॉट अ लॉन्ग, not present time long, but a decent life expectancy as compared to when we developed agriculture. Because when we developed agriculture, we were dependent on one type of crops or food, and we as a species are not developed that way. हम एक तरह के फूड के लिए खाने के लिए डेवलप नहीं हुए, हम वैरायटी खाने के लिए डेवलप हुए, राइट? वी एज अ स्पीशीज हर्बीवोर से कार्निवोर में एंड ओमनीवोर में डेवलप हुए. इनफैक्ट हर्बीवोर से ओमनीवोर में, तो वी हैव डेवलप्ड और इवॉल्व्ड आवरसेल्फ टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. एंड विद दैट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो वैरायटी जो है वो कम हो गई. प्लस उस एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए जो नेटिव मेडिसिन थी या जो मेडिसिनल प्लांट्स थे, उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया. तो हमारी जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी थी उसमें डिक्लाइन आया. यस, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, आई नो, बट प्री हिस्टोरिक पीपल दे हैड मेडिसिनल टेक्नोलॉजी, दे हैड दे मतलब उन्होंने नोट डाउन कर लिया था कि भैया कौन सा पौधा जो है वो किस तरह की मेडिसिनल क्वालिटी रखता है. तो मैंने आपको क्या कहा, 4 लाख सालों तक ऐसा नहीं है कि इंसान के दिमाग का विकास ही नहीं हुआ था. इंसान तो डेवलप हो ही गया था धीरे धीरे, या 150 ईयर्स 1000 ईयर्स तक आते आते तो जो है वो काफ़ी हद तक इंसान डेवलप हो गया था. तो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 लाख साल से 12,000 साल तक ऐसा नहीं है कि इंसान को समझ नहीं आया कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. एक तो क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया काफ़ी हद तक, राइट? और दूसरा, हंटिंग गैदरिंग जो है वो भरपूर चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एग्रीकल्चर पर स्विच करने की जरूरत नहीं थी. तो प्रीडोमिनेंटली वी आर हंटर गैदरर्स. सो दिस इज द रीजन, ये जो सैचुरेशन आ जाता है और फिर स्विच करना पड़ता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड ये वो
बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर छोड़िए, ये वो इकोनॉमिक चेंज है दैट डराइव ऑल अदर चेंजेस। हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में स्विच, राइट, एग्रीकल्चर से ट्रेड में स्विच, ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे तभी तो ट्रेड करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर लेबर इंटेंसिव ट्रेड है, फिर कैपिटल इंटेंसिव ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक स्विच है, दिस रिजल्टेड इनटू, अब आप जानते ही हैं इकोनॉमिक स्विच, व्हाट वर द सब्सिक्वेंट चेंजेस। तो अगर हम देखें कि यूरोपियंस यूरोप से बाहर क्यों निकले, तो आप जो है वो रीजन ढूंढिए कि भैया उनको कुछ सैचुरेशन, किसी ना किसी तरह की सैचुरेशन आ गई होगी, कोई सैचुरेशन आ गई, दैट इज व्हाई दे हैड टू एक्सप्लोर, राइट। सो दिस सिचुएशन यूरोपियंस को जो फेस करनी पड़ी वो क्या थी, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे वो अच्छे से, किसके साथ, एशिया के साथ। क्यों आ गया था ये सिचुएशन, बिकॉज अरेबियंस बैठे थे बीच में टर्क्स बैठे हुए थे, बीच में जेनुवीज थे, विनीशियन थे, राइट, बहुत सारे मिडल मैन थे जो कि रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस को खोलकर ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत महंगा पड़ रहा था ट्रेड, सो दे हैड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड देमसेल्व्स। खैर, I just wanted to give you this concept, although this is not part of our syllabus per se, right, but you should know this, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए if you are studying history optional, because जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं, राइट, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ, वन सेकेंड, तो जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, वो हम ऑलमोस्ट लेट्स से 12,000 साल से आगे की पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट 4 लाख सालों का इतिहास है होमोसेपियंस का। और अगर नॉट होमोसेपियंस से पहले अपने जो हम पूर्वजों की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स का एवोल्यूशन है, राइट। वो एक तरफ है और जो हम पढ़ते हैं वो एक तरफ है, तो जो हम कर रहे हैं इस समय उस पर ये 2 लाख सालों के एवोल्यूशन का बहुत बड़ा असर है, ये मैंने कई बार आपको बताया। तो मेक श्योर कि आप इस पर भी ध्यान जरूर दें, ऑल्दो ठीक है, अगर आप देखें कि प्रैग्मेटिकली सोचें, अगर थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाएं, तो आप कहेंगे कि देयर इज नो नीड ऑफ स्टडिंग ऑल दिस, बिकॉज क्वेश्चन तो यहां से बन ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो यहां पर बन रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट यू शुड नो अबाउट दिस टाइम, जितना ज़्यादा हो सके आपको पता होना चाहिए, सो दैट आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ आए। सो दैट इज ऑल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट विद नियो कॉलोनियलिज्म, वहां पर मैं फिर से, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ना, अब मैं इसी सेचुरेशन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा कि चेंज होगा तो सेचुरेशन की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ जाएंगे तो क्या सिचुएशंस हमें देखने को मिलेंगी वहाँ, ऑल राइट। सो दैट इज ऑल, मेक श्योर कि प्रीवियस अभी सेशंस को अटेंड जरूर कर लें आप। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।